Hello students, we are reading chapter 2, Self-Study of Supplementary Reader Part 3rd, Moral Education. Okay, so let's start with given incident. Okay, once Sultan of Bukhara Nuhi ibn Mansur fell ill. Hakims and Vaids from distant places came to treat the Sultan, but he was not cured. One day a man came to the Sultan's palace and told him about a young Hakim. The Sultan summoned the Hakim to the palace. He was received with great honor. The Hakim started treating the Sultan, and after a few days he was cured of his disease. The Sultan decided to reward him. He said to the Hakim, "You have saved my life. I am pleased with you. Ask anything you like as a reward from me." The young Hakim was generous and was not greedy. He did not want any wealth from the Sultan. He knew that the Sultan had a very rich library. He considered books as the real wealth. So he said to the Sultan, "If you are really pleased with me, please allow me to read books from your library." The Sultan was amazed to listen to this strange request. He said, "Why did you make such a request? If you had asked for wealth, I would have given you a lot of it." The Hakim folded his hands and said to the Sultan very politely, "To me there is no wealth in this world greater than knowledge. Please give me what I have asked for." The young Hakim, after a few years, became a well-known mathematician. His name was Hakim ibn Sina. Okay, here second incident are given. Devnath Singh was a Rajput. He was a small landlord. He was not literate. One of his friends came to see him at his village. Devnath Singh said to his friend, "I want to read the Gita, but I am ashamed to ask someone to read it to me. What can I do?" The friend said, "The Gita is the voice of God. You can't distinguish God from his voice. Go to any place where the recitation of the Gita is taking place and repeat what you listen." After about 2 years, the two friends met again. Devnath Singh took his friend to a secluded place and said, "I had bought a copy of the Gita in large print at the time only. Listening to the recital of the book every day, I moved fingers over the pages of the book. While moving fingers over the pages, I went on saying something, but I couldn't understand what I said. Now you listen to me." The friend listened to what Devnath Singh said and looked at the page of the book over which he was moving his finger. He was reciting the same slok over which he was moving his finger. This was the result of self-study. The Gita had become a part of his life. Devnath Singh was disinherited from the family property, but still he arranged his daughter's marriage and giving the responsibility of his wife to his son. He left on a pilgrimage. He used to get rupees 45 every month from his family. He wore khadi. His only position was a bag containing his clothes, a lota, a bed sheet, and a robe. He also had a blanket which he donned on his shoulders. He traveled all over India on foot 3 times. He died in a temple reciting the sloka of the Gita and running his fingers over its pages. तो यहाँ 2 इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, जिनमें एक इंसिडेंट ये है कि बुखारा के जो सुल्तान थे नूही इब्न मंसूर एक बार बीमार पड़ गए. बहुत सारे वैद्य हकीम मतलब होता है डॉक्टर. उस समय वैद्य और हकीम चलते थे. ठीक है, तो इधर उधर से दूर दूर से आए, पर कोई सुल्तान को ठीक नहीं कर पाया और ना ही सुल्तान ठीक हो पाए. तो एक दिन एक आदमी आता है और सुल्तान के पैलेस में आता है और उससे बोलता है, किसके बारे में? एक यंग हकीम था. ठीक है, उसके बारे में बताता है. तो सुल्तान ने बड़े आदर के साथ उस हकीम को अपने पैलेस में बुलवाया. हकीम ने उसका सुल्तान का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया. कुछ दिनों बाद सुल्तान जो था वो ठीक हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई. सुल्तान ने डिसाइड किया कि मैं उसे पुरस्कार दूं. तो उसने हकीम से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुमसे बहुत खुश हूं.
तो जो तुम चाहो वो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं खुशी खुशी तुमको पुरस्कार के रूप में दे दूंगा। ठीक है। तो यंग हकीम जो था वो बहुत माइंडेड था, पर लालची नहीं था। वो किसी भी खजाने की लालसा नहीं रखता था। ठीक है। तो वो ये जानता था कि सुल्तान के पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वो जो हकीम था वो बुक्स को ही अपना क्या मानता था, असली खजाना मानता था। तो उसने सुल्तान से कहा, अगर आप सही में मुझसे खुश हैं तो प्लीज मुझे आपकी उस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना अलाउ कर दीजिए, है ना। तो सुल्तान जो था वो आश्चर्यचकित हो गया ये सुनकर। सुल्तान कहता है कि तुम मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम मुझसे खजाना मांगते तो मैं तुम्हें जितना मांगते उससे ज्यादा खजाना देता। ठीक है। तो जो हकीम था वो अपने हैंड फोल्ड करके सुल्तान से बड़ी विनम्रता से बोलता है कि मेरे लिए इस वर्ल्ड में बुक्स के अलावा या नॉलेज के अलावा, है ना, कोई खजाना नहीं है। टू मी देयर इज नो वेल्थ इन दिस वर्ल्ड ग्रेटर देन नॉलेज। ज्ञान से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। प्लीज जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे दीजिए, है ना। तो सुल्तान जो है वो एग्री कर लेते हैं उसकी बात से, और वही हकीम आगे जाकर एक जाने माने मैथमेटिशियन बन जाते हैं। उनका नाम क्या था, हकीम इब्ने सिना। ये मैथमेटिशियन आगे चलकर बने। ठीक है। तो बुक्स से ही, सेल्फ स्टडी और बुक्स से ही वो आगे चलकर मैथमेटिशियन बने। ठीक है। नाउ सेकंड इंसिडेंट आल्सो गिव हियर। देवनाथ सिंह जो थे एक राजपूत थे, है ना, और एक छोटे लैंडलॉर्ड भी। ठीक है। जमीन के भू मालिक। वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनका एक फ्रेंड उनके गांव आया उनको देखने के लिए। तो देवनाथ सिंह ने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि मुझे गीता पढ़कर सुना दो, है ना, मैं क्या करूं। तो फ्रेंड कहता है कि जो गीता है वो क्या है, वॉइस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की आवाज है। ठीक है। तो तुम परेशान ना हो, है ना। कहते हैं कि तुम ऐसी किसी जगह जाओ जहां पर गीता रोज सुनाई जाती हो, रिसाइटेशन मतलब गाकर सुनाई जाती हो। ठीक है। तुम ऐसी जगह जाओ और सुनकर उसे रिपीट करो। ओके। आफ्टर 2 इयर्स, अब 2 साल के बाद जब उसका दोस्त दोबारा उससे मिलता है तो देवनाथ सिंह जो था उसे कहाँ लेकर जाता है, वही प्लेस पर लेकर जाता है जहां पर वो क्या सुनता था, गीता सुनता था। ठीक है। तो वो कहते हैं, देवनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने एक गीता की कॉपी खरीदी, मतलब एक और गीता खरीदी मैंने, जिनमें लार्ज प्रिंट्स थे, बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए थे। ठीक है, उस समय। और फिर मैं क्या करता था, जब मैं यहाँ आता था तो जब गीता सुनाई जाती थी तो मैं फिंगर्स रखकर उसमें चलाता था। ठीक है। बुक में हाथ रखता जाता था और सुनता जाता था। तो मुझे जो बुक्स के पेजेस हैं और बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो चीजें याद हो गई हैं, है ना। याद तो हो गई हैं, पर जो मैं कहता हूं वो मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्या कहता हूं। अब तुम मुझे सुनो। तो फ्रेंड को वो क्या करता है, गीता की बुक रखा देता है। ठीक है। अब ये यहाँ से बोलते जाते हैं और उसका जो फ्रेंड था, देवनाथ सिंह के जो फ्रेंड थे, वो फिंगर्स बुक में चलाते चलते हैं। तो एग्जैक्टली देवनाथ सिंह जी वही वर्ड बोलते हैं जो बुक में लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट था, सेल्फ स्टडी। ओके। गीता जो थी उसके, देवनाथ सिंह जी के लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। वो डेली सुनते थे, फिंगर्स चलाते थे, तो उनको एक एक वर्ड याद हो चुका था। ठीक है। तो फिर देवनाथ सिंह जी ने क्या किया, पूरी प्रॉपर्टी अपने फैमिली के नाम कर दी, है ना, अपनी डॉटर की मैरिज कर दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ को और अपने बेटे को देकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें हर महीने 45 रुपए, 45 रुपीज फैमिली की तरफ से भेजा दिए जाते थे देवनाथ सिंह जी को। वो क्या पहनते थे, खादी पहनते थे, है ना। और उनकी पोजीशन क्या थी,
कि वो अपने साथ एक बैग रखते थे जिसमें कपड़े होते थे, एक लोटा रखते थे, एक बेडशीट और एक रस्सी, ठीक है, और एक ब्लैंकेट जो कि उनके शोल्डर पर लटका हुआ होता था। इस तरीके से उनने पूरे इंडिया का भ्रमण, ठीक है, 3 बार किया, और वो भी पैदल चलकर, है ना, ऑन फुट 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ही डेड इन अ टेम्पल, और उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई, टेम्पल में, और वो भी गीता के श्लोक सुनते हुए उनकी मृत्यु हुई। गीता के श्लोक सुन रहे थे और बुक पर फिंगर चलाते चल रहे थे, एक एक श्लोक में, एक एक वर्ड में फिंगर चलाते चल रहे थे, तो उस टाइम उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बताया गया, सेल्फ स्टडी, ओके, कि सेल्फ स्टडी से वो पूरी गीता पढ़ना सीख गए, ओके। सो योर होमवर्क इज फाइंड द आंसर्स and fill in the blanks, okay।